Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Our topic is now monostable multivibrators. Monostable mean a circuit that is stable in one state. As we have already seen that vibrators are those circuits whose output can whose output have two different states, and you can assign the value low or high to these states. And also we have seen that vibrator can change their value from one state to other state depending upon some conditions. For the astable multivibrators, we saw that the vibrator can change its state on its own. And for monostable multivibrator, we will see that this is the vibrator that is stable in one state and it will not move to the other state unless we apply some external signal to put this circuit into unstable state. And after moving some time, after passing some time in unstable state, it will again move back to its stable state. मीन तो दो स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट में तो ये ऑटोमेटिकली रहेगा, दूसरी स्टेट में मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा. लेट वी सी द सर्किट डायग्राम एंड डिस्कस इट. Circuit diagram contain four resistors as for the astable circuit diagram, but it have only one capacitor. Now which transistor will be turned on at the initial time when you put this VCC turn on? कि जब आप यहाँ पे VCC को अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपके पास कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन पोजीशन में होगा? तो we can see that as the VCC is turned on, current will flow through these three resistors. As current approaches at this point, it will turn towards C1, and at this point current will divert towards R3. अब देखिएगा, C1 look like short circuit so that current through R2 and R1 will try to charge the capacitor C1, and there will be no current in this direction. इनिशियली आपके पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं होगा टू टर्न ऑन दी Q2, सो दैट Q2 विल बी टर्न्ड ऑफ एट इनिशियल पॉइंट, कि जब तक ये कैपेसिटर C1 चार्ज नहीं होगा इट विल नॉट टर्न ऑन Q2, या जब तक इसकी वैल्यू जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.7 नहीं होगी Q2 विल नॉट बी टर्न्ड ऑन. नाउ एज द करंट फ्लोज थ्रू R3 इट विल टर्न ऑन Q1. सो इनिशियल पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, Q1 विल बी टर्न ऑन, Q1 विल बी ऑन एंड Q2 विल बी ऑफ. तो इनिशियल जो कंडीशन है इसमें आप देख सकते हैं. So as initial condition we will see that Q1 will be turned on and Q2 will be off. Q1 on and Q2 will be off. Now R2 will try to charge C1 from right side and current through R1 will pass through Q1. So R2 charges C1 to turn on Q2. जब तक इसका वैल्यू यहाँ पे 0.7 नहीं होगी Q2 will not be turned on, और जब तक Q2 ऑन नहीं होगा Q1 will remain on. So on time of Q1 is related to R2 C1. प्रोडक्ट ऑफ R2 C1 आप इसको टाउ कह दें, इसके साथ ये रिलेट होगा. जो ही R2 C1 की वजह से कैपेसिटर के वोल्टेज 0.7 होगा इट विल टर्न ऑन Q2. सो we will have a time tau is equal to log of 2 R2 RC in which Q1 will be turned on. वो जब Q2 आपके पास ऑन कंडीशन में होगा इट मीन्स दैट नाउ करंट दैट वाज पासिंग थ्रू R3 will be stopped here and will move towards Q2, so it will turn off Q1.
Q1 will be turned off। तो आपके पास ये दोनों जो सर्किट हैं, दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इनमें से एट ए टाइम सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ऑन पोजीशन में रहेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर डेट विल रिमेन इन ऑफ कंडीशन। Now we draw this graph to represent the waveforms। तो अगर आप देखते हैं आपके पास Q1 है, तो Q1 इनिशियली आपके पास ऑफ है। अगर ऑफ है तो इसका आउटपुट वोल्टेज डेट इज कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ पे आप कलेक्टर वोल्टेज को VC1 लिख रहे हैं। तो VC1 will be 0 and after a time T1 टाइम के बाद जब Q2 आपके पास ऑन होगा तो Q2 ऑफ, और जब ऑफ रहेगा तो इसका वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू VCC के इक्वल हो जाएगा। और Q2 को अगर आप ड्रा करना चाहें यहाँ पे आपके पास, तो Q2 विल बी मैक्सिमम इनिशियली बिकॉज Q2 इज ऑफ, तो इसका जो VC2 है डेट विल बी initially maximum and after time T1 it will be turned on. No, there is no capacitor C2 here to turn Q2 again in on condition। तो आपके पास Q1 ऑफ रहेगा और Q2 ऑन रहेगा, डेट इज आवर स्टेबल स्टेट। तो आपके पास जो स्टेबल स्टेट आएगी उसमें Q1 ऑफ है और Q2 आपके पास ऑन है। Q1 ऑफ एंड Q2 ऑन। हियर इज द स्टेबल स्टेट फॉर द सर्किट। और अनस्टेबल यही है कि पहले जब ये इनिशियली Q1 ऑन है और Q2 ऑफ, तो इसको आप अनस्टेबल भी लिख सकते हैं, अनस्टेबल। इट विल रिमेन इन दिस स्टेट unless you change the state of Q2 by applying a ground signal at Q2। अगर आपके पास एक ग्राउंड सिग्नल है, आपने ज़ीरो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया, इस पॉइंट पे अगर आप ज़ीरो वोल्ट अप्लाई करते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं कुछ देर के लिए, या यहाँ पे आप एक पल्स अप्लाई करते हैं, पल्स सिग्नल, तो इस फॉर्म में है। लेट्स सपोज इस तरह का कोई सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन आपके पास T है। तो जब ये सिग्नल यहाँ पे आपके पास आएगा, नेगेटिव सिग्नल आएगा, ग्राउंडेड सिग्नल आएगा, इट विल मूव द बेस टुवर्ड्स ग्राउंड एंड मूविंग ऑफ द बेस टुवर्ड ग्राउंड विल टर्न ऑफ Q2। तो Q2 को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ए ट्रिगिंग सिग्नल, लो ट्रिगिंग सिग्नल। तो जब तक ये ट्रिगर सिग्नल आपके पास ग्राउंड रहेगा, ज़ीरो वैल्यू रहेगी इस ट्रिगर सिग्नल की, Q2 का जो बेस है that will be at zero potential and there will be no base current। if there will be no base current then Q2 will be turned off। तो Q2 will remain off for a time t टाइम के बाद दोबारा जब इसकी वैल्यू हाई होगी सिग्नल की, ट्रिगिंग सिग्नल की, तो आपके पास अब इस तरफ करंट कोई नहीं आएगा। पहले C1 की वैल्यू चार्ज होगी, C1 जो है वो चार्ज होने के बाद दोबारा से इस Q2 को टर्न ऑन करेगा और आफ्टर चार्जिंग ऑफ C1 Q2 विल बी टर्न्ड ऑन। तो दो तरह से, एक तो ये है कि आप सिग्नल को कुछ देर के लिए अप्लाई किया तो Q2 आपके पास ऑफ हो गया, आपने सिग्नल को रिमूव कर दिया, या ये है कि सिग्नल की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई होगी और जब वैल्यू हाई होगी तो आपके पास ये कुछ देर के बाद जब C1 का जो वोल्टेज है वो 0.7 होगा तो ये आपके पास दोबारा से Q2 को ऑन हो जाएगा। तो आपके पास Q2 will remain off for a time t time in when the trigger signal is at its lower value or at its zero value, and after you remove this trigger signal C1 will start charging and it will take a time t1 time take करेगा, that is equal to it will take tau time
तो ये टाउ टाइम के बाद दोबारा यहाँ पे ऑन होगा। टाउ आपके पास सॉरी टी टी टाइम T1 टाइम लेगा आपके पास ये, जिस टाइम के बाद ये दोबारा ऑन होगा। मीन T1 आपके पास एक टाइम होगा जिस टाइम में Q2 ट्रिगर सिग्नल रिमूव होने के बाद दोबारा से ऑन होगा। अब इसको T2 कह दें, लेट्स सपोज T2, क्योंकि T1 हम पहले यूज़ कर चुके हैं। T2 मीन T2 वो टाइम होगा जिस टाइम में C1 का वोल्टेज है वो ज़ीरो से, क्योंकि जब आप ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से ग्राउंडेड हो जाएगा बेस ऑफ Q2, और बेस ऑफ Q2 जब अब ग्राउंडेड होगा तो C1 का पोटेंशियल इस साइड के ग्राउंड होने की वजह से C1 विल गेट डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस सिग्नल को ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे अप्लाई किए रखें। तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो दोबारा चार्ज होने के लिए इसको एक टाइम चाहिए, डेट इज़ T2, और T2 विल बी इक्वल टू log 2 into R2C1। तो इस टाइम के बाद ये दोबारा से ऑन होगा। तो इट मीन्स कितने टाइम के लिए ये ऑफ रहेगा? ऑफ टाइम इसका क्या होगा? ऑफ टाइम इसका आपके पास होगा T+T2, T ड्यूरेशन ऑफ दिस सिग्नल और T+T2, T2 टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दी Q2। अब अगर तो T की वैल्यू ज़्यादा है T2 से तो ये ऑफ टाइम होगा, और अगर आपके पास if T is much smaller than T2, या जो डिस्चार्ज टाइम है यहाँ पे, तो उसके लिए फिर ऑफ टाइम वो अप्रॉक्सीमेटली T2 के इक्वल ही होगा। तो अगर आपके पास इस ट्रिगर सिग्नल की जो लो वैल्यू है उसकी ड्यूरेशन T और T इज़ मच स्मॉलर देन T2, तो आपके पास फिर ऑफ टाइम जो है वो ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू T। तो ये ऑफ टाइम है वो T के इक्वल होगा, डेट इज़ ड्यूरेशन ऑफ दिस सिग्नल, ट्रिगर सिग्नल फॉर द लो वैल्यू। तो अब हम इस सर्किट ग्राफ को दोबारा से ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि इनिशियली आपके पास Q1 इज़ ऑन एंड Q2 इज़ ऑफ, और बाद में कुछ टाइम के बाद आपके पास दोबारा से कुछ टाइम के बाद आपके पास टाइम कितने टाइम के बाद, डेट इज़ इक्वल टू log R2C1। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, हम इनिशियल कंडीशन को देखें तो इनिशियली Q1 ऑन है आपके पास और Q2 ऑफ, और Q2 कब तक ऑफ रहेगा? जब तक Q1 ऑन रहेगा, और Q1 कब तक ऑन रहेगा? जब तक C1 का जो पोटेंशियल है वो 0.7 को अप्रोच नहीं करता। तो T1 आपने ऑन टाइम कहा है इसके लिए Q1 के लिए, तो T1 की वैल्यू जो है आपके पास विल बी इक्वल टू log of 2 into R2 into C1। This will be the on time for the Q1। ऑन टाइम मीन जब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, और ऑफ टाइम दो तरह से आपके पास आएगा, T+T2, T2 दोबारा आपके पास है log of 2R2C1। अगर T की वैल्यू इस सिग्नल के 0 वोल्ट की ट्रिगर सिग्नल की जो लोअर पार्ट है या ज़ीरो वैल्यू, उसकी ड्यूरेशन अगर आपके T2 से ज़्यादा है, आप इसकी T2 की वैल्यू निकालेंगे ना, उसके बाद आप देखेंगे कि ये T की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फिर आपके पास ऑफ टाइम T+T2 होगा। लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है तो ऑफ टाइम आपके पास इसकी ड्यूरेशन के इक्वल होगा। जो ही आप ट्रिगर सिग्नल को रिमूव करेंगे ये दोबारा आपके पास ऑन हो जाएगा। तो आप इस सर्किट को दोबारा से अगर ग्राफ को ड्रा करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा ऑफ टाइम, और यहाँ पे आपके पास ये ऑन टाइम है। here is the on time and here is the off time, और
फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो दोबारा से देखिएगा, टाइम पीरियड द सिग्नल द टाइम आफ्टर विच टाइम रिपीट सिग्नल रिपीटेड सेल्फ। तो यहाँ पे आप कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते यहाँ पे, वो इसलिए कि आपने कुछ टाइम के लिए सिग्नल को ऑन किया फिर दोबारा उसको ऑफ़ कर दिया, या कुछ टाइम के लिए इसको ऑफ़ किया और बाद में इसको फिर दोबारा से ऑन कर दिया। तो ये जो टाइम है, दिस इज़ द ऑन टाइम और द टाइम दैट द ऑसिलेटर और द वाइब्रेटर पासेस इन द अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट है Q1 इज़ ऑन। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ अगर दोबारा से ड्रा करना चाहेंगे तो दैट इज़ दी, और आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं टाइमिंग सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑफ टाइम आपके पास टी, कैपिटल टी से लिखा हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू टी प्लस T2 if t is larger than T2 and t is equal to t if t is much larger than T2. So here is the off time. फॉर Q1। और अगर आप यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, इस साइड से आउटपुट ले रहे हैं आपके पास, तो इनिशियली आपके पास इस तरह से आउटपुट होगी, इनिशियल आउटपुट 0, और उसके बाद फिर आपके पास ये मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर दोबारा आप यहाँ पे इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहें, इसका रिस्पांस मेजर करना चाहें, फुल टाइम या स्टेडी स्टेट रिस्पांस इसका देखना चाहें, तो स्टेडी स्टेट में ये है कि आपके पास स्टेबल स्टेट जो है वो है Q2 इज़, स्टेबल स्टेट आपके पास है Q2 इज़ ऑफ, सॉरी Q2 इज़ ऑन एंड Q1 इज़ ऑफ। तो स्टेबल स्टेट में आपके पास ये है कि VC1, क्योंकि ये तो स्टेबल स्टेट के लिए हम देखना चाहते हैं, Q1 का जो वोल्टेज है मैक्सिमम होगा, और ये उस वक्त मिनिमम होगा या ऑन होगा जब आप एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल सिग्नल की ये ड्यूरेशन है, अगर तो जितनी ड्यूरेशन एक्सटर्नल सिग्नल की होगी उतनी ड्यूरेशन इस ऑन टाइम के लिए होगी। तो अब यहाँ से टाइमिंग सिग्नल फाइंड आउट कर सकते, जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम के लिए। Thank you. Hopefully you will learn this. Next we will see the bistable circuit.